Nice. So firstly, tell me one thing. How many of you are 11 years old? Raise your hand. How many of you are 11 years old? Every section. It's from every section. Like in Richardson, I can see many hands are raised. In Leibniz, yes. How many of you are 11 years old? In Ramanujan, many students. Okay. In Leibniz, few students. Okay. How many of you now? Hands down, hands down. How many of you are 12 years old? How many of you are 12 years old? देखो कुछ बच्चों ने 11 पे भी नहीं उठाया, 12 पे भी नहीं उठाया. कितने साल के हो फिर? What's your age? हाँ? Okay, so now I can see many of you. You can say it's a class, है ना? ये जो class है, it's a mixture of 11 years and 12 years students. Yes, we can say that, है ना? 11 साल और 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है? And by the end of this class, जब आप ये 7th class आपकी complete होगी, might be many of you will enter into teenage. Teenage, who can tell me what is teenage? How many of you know about the teenage? Yes, Leibniz say one boy middle row. Yes, come beta. And I request everyone to please turn on your mic from the Zoom. Okay? आपको अपनी क्लास को खुद शांत रखना है. You have to maintain the discipline. ठीक है? Yes. Year 11 to 19 are teenage. Yes, teenage is what beta? 11 to 19 age are teenagers. 11 to 19. 11 में teen आ रहा है? What I said. By the end of this class, you will be 13 years and you will be teenager. Yes? So it means 13 to 19. yes, 13 to 19. देखो teen सुनाई दे रहा है, किस किस को teen सुनाई दे रहा है? 13 to 19. किस किस को teen सुनाई दे रहा है? चलो जल्दी से बताओ, देखते हैं सबके कान कैसे हैं. Sharp enough? Okay, that's nice. So now you will be teenagers. Means you will be 13, 14, 15, 16, 18, 19. So ending of teenager. ठीक है? But in your case, it will be beginning. आप स्टार्ट करोगे, है ना? टीनेज जो आपकी स्टार्ट होगी. अब जो 12 साल के होंगे, जो 12 इयर्स के होंगे, दे विल बी थिंकिंग कि अभी हम तो टीनेजर्स नहीं हो रहे. यस, यू विल नॉट बी टीनेजर्स, बट जैसे हम कहते हैं ना, जो 12 साल जिसके कंप्लीट हो गए, व्हेन यू कंप्लीट योर 12 इयर्स, तो आपका कौन सा साल चल रहा है? 13. सो ऑटोमेटिकली यू आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स योर टीनेज ओनली. ठीक है? आप भी अपनी टीनेज की तरफ ही जा रहे होंगे. यस. सो अब ये जो टीनेजर वाला फैक्टर आ गया, यू सेड 13 to 19 इज टीनेजर, बट बिफोर दैट 2 years 11 and 12, उसमें भी you will experience some changes in your body. And you know 11 to 19 years का जो window है in your life or your age, it is adolescent. क्या कहते हैं इसको हम? What do we call it? रिचर्ड्स और लेबनिज का म्यूट क्यों हो गया? Why it's mute? कैसे मुझे आवाज आएगी? How can I hear your voice that you are saying something? So turn your mic on. सभी का बेटा Zoom से mic on. ठीक है? Only then I can communicate with you. Otherwise I have to do lips reading, है ना? Yes. So क्या है? मेरे पीछे बोलो. ठीक है? 11 to 19 year is your adolescent age or adolescence phase. क्या है? कौन सा phase होगा? Adolescence. That's right. Adolescence. So then you will be called adolescent. आपको क्या कहा जाएगा? You're adolescent. What does it mean when we are saying adolescent? Adolescent is that phase now scientifically. असली में नहीं बेटा, सिर्फ साइंटिफिकली हमने कुछ कैटेगराइज किया है. ठीक है? सो साइंटिफिकली व्हाट वी से द एज आफ्टर 10 or before 20 is come under adolescent phase. उससे पहले वाला क्या हुआ? Before 10, that is your childhood phase. जब हम कहते हैं बच्चे हैं, अभी भी आप बच्चे ही हो. ठीक है? हम जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, we will call you बच्चा only. है? So, but scientifically we say before 10, it's your childhood phase. Now it's this phase, your adolescent phase is what? It's between the childhood
एंड एडल्टहुड। अभी देखो 10 साल आपके कंप्लीट हो चुके, यू हैव कंप्लीटेड योर 10 years, मीन चाइल्डहुड फेज इज ओवर साइंटिफिकली, यू आर मूविंग टूवर्ड्स एडल्टहुड। सब बड़े बनोगे, एडल्ट बनोगे, बनोगे, यस और नो? एंड इट्स नॉट योर चॉइस, एंड इट्स नॉट योर चॉइस, ठीक है, ये आपकी चॉइस नहीं। आप कहो कि नहीं मैंने तो 11 साल का बच्चा ही रहना है या मैंने 12 साल का बच्चा रहना, डू यू थिंक यू कैन डू दैट? कैसा होगा अगले साल भी आप 11 years के रह जाओ या 12 years के रह जाओ? नो, है ना? सो टाइम जो है हमारा चलता रहता है, एंड वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू दैट, एंड नेक्स्ट ईयर यू विल बी, और वी कैन से योर एज विल बी इंक्रीज बाय 1, ठीक है, 1 year. So that is how our life goes on. आप now you are moving from childhood towards adulthood. ठीक है, कहां से हम जा रहे हैं? हम childhood phase से we are moving towards adulthood. How many of you are excited? How many of you are excited for your adulthood? Yes, many student I can see. Yes. So you will become, and now how many of you want to be a responsible citizen? How many of you want to be a responsible adult citizen? That's nice. I really feel proud that you want to become a or we can say responsible citizen. When we say responsible citizen, it means we are responsible. We are responsible for our own actions. Hands down, hands down. तो जब हम कहते हैं कि हम जो एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, तो कैसे इंसान बनेंगे? अच्छे या गंदे? हाउ यू वांट टू बी, गुड और बैड? गुड, है ना? गुड सिटीजन, एंड गुड सिटीजन के साथ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर हम बड़े होते हैं डजंट मीन दैट हम जो है दूसरों को हार्म पहुंचाएं, दूसरों को तंग करें या दूसरों को बुली करें, ठीक है? इट डजंट मीन दैट व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू शुड शो दैट ओ आई एम ग्रोन अप, और अपने जो जूनियर्स हैं या कोई वीक बच्चा है उस पर आप बुली करो। दैट इज नॉट शोइंग स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बताता, इट इज शोइंग योर वीकनेस बेटा। So always take care, always maintain good terms with your surrounding, your classmates, your teammates, your relatives, ठीक है? So that makes you a good citizen. अब आ जाते हैं कि what actually happens during adolescent. अब आप सभी बच्चे सभी ध्यान से सुनो, pay attention. Now you are in 7th standard. Compare yourself when you were in 3rd और 4th standard. कंपेयर करो, सोचो, आपने अपनी फोटोज तो देखी होंगी ना, वीडियोस देखी होंगी। सो जब आप 3rd and 4th स्टैंडर्ड में थे, क्या आप ऐसे ही लगते थे? डू यू लुक द सेम? सेम अभी जैसे हो, हाइट उतनी है, मसल्स उतनी है सब कुछ ऐसा ही है, सेम है? और इज देयर एनी चेंज? इज देयर एनी चेंज? No, you're different, है ना? So you're experiencing what is happening right now, and especially in this time, अभी जो time चल रहा है, especially in this time, what you are experiencing? You are experiencing that your body is changing a lot. Tail section, your video is not open, but beta, your mic is I think open. Please turn it off. Tail section, I request to please turn the mic off. Yes. So I was saying, so these changes are what? Why these changes are happening now? सबसे बड़ी चीज, ये changes अभी आप जब 7th क्लास में हुए या फिर आप 6th क्लास में हुए तभी क्यों हुए? Why it was not happen when you born? ठीक है, जब आप पैदा हुए तब क्यों नहीं हुए? या फिर when you were in nursery class, UKG class, LKG class, उस टाइम क्यों नहीं हुए? Why it is happening right now? कोई बता सकता है क्यों अभी आपकी हाइट बढ़ रही है? हाँ, who can tell me why it's happening now at this age? सोचो जरा, क्यों अब जो है बॉयज के हल्के हल्के फेशियल हेयर्स आने लगे? स्लिबनेस से आ जाओ। यस बॉय। नो नॉट यू, योर टर्न इज ऑलरेडी कम ना बेटा, वो कॉर्नर रो में जो सेकंड लास्ट बेंच में बच्चा है, कॉर्नर, ठीक है? लेट्स गिव एवरीवन अ चांस टू स्पीक अप। यस, आ जाओ फटाफट, कम फॉरवर्ड।
Because now is adolescent age. Because But now is adolescent age. adolescent age, okay, adolescent age है, that's why your facial hairs are coming. But my question is same बेटा, why it is happening now? आप तो वही हो, है ना, आप वही के वही हो, लेकिन अब क्यों आपके फेशियल हेयर आ रहे हैं? Why it is coming now? ये पहले क्यों नहीं आए? What is the reason? So question है, before your adolescent phase, ध्यान से सुनो, before your adolescent phase, your body was working on your bones growth, ठीक है, on your height, ठीक है, and it totally focused on your brain development. तो आपकी बॉडी, जो आप खाते थे पीते थे, एवरीथिंग वॉज इन्वेस्टेड ऑन योर बॉडी ग्रोथ, कि आपका साइज बढ़े, बोन्स, क्योंकि बोन्स बढ़ेंगे तभी तो आपकी मसल साथ साथ जो है बड़ी होंगी, आपका आर्म्स जो है बड़े होंगे, ठीक है. सो अभी तक उस पे इन्वेस्ट कर रही थी. नाउ अब आपकी हाइट, आपका जो बॉडी का फिजिक है, इट इज नियर टू द अडल्टहुड. अब आपकी हाइट थोड़ी और बढ़ेगी, ठीक है, डजंट मीन दैट इट गेट स्टॉप, ठीक है, अभी स्टॉप नहीं हो रहा, बट यू हैव कवर्ड योर मोर देन 50% ऑफ योर माइलस्टोन. 50% से ऊपर आपकी हाइट हो चुकी है, जो आपकी नियर आपकी हाइट होनी उससे ज्यादा है, ठीक है. तो अब नाउ योर बॉडी इज वर्किंग ऑन व्हाट, कि आपको एडल्टहुड की तरफ, जो आपकी बॉडी में चेंजेस होने हैं उस तक लेके जाए, ठीक है. अब क्योंकि आप जब फर्स्ट ईयर के थे, 1 ईयर के थे, आपके फेस पे हेयर नहीं थे, किसी बच्चे के थे, किसी लड़के के, जो है 1 साल का जो बच्चा था उसके दाढ़ी थी, मूछें थी, किसी बच्चे की नहीं थी, है ना, नहीं थी. किसी बच्चे को देखा है 1 साल का बच्चा जो दाढ़ी लेके चला हुआ है या मूछें हो रखी है? नहीं ना, इट यूजली डजंट हैपन, है ना, नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी इज नॉट वर्किंग ऑन योर दीज थिंग्स, इट्स वर्किंग ऑन योर साइज, योर बॉडी साइज शुड ग्रो, ठीक है. सो दैट्स द रीजन. नाउ योर बॉडी, आपका ब्रेन जब डेवलप हो चुका है, नाउ इट इज मेकिंग समथिंग, क्या बना रहा है? हार्मोन्स. अभी हम डिटेल में हार्मोन्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इट्स नॉट दैट मच इन योर सिलेबस, ठीक है. So it's a chemical. Just think hormone is a chemical, ठीक है, that send message. It's a courier like service. Courier में होता है ना, जो आते हैं डिलीवरी बॉय, गर्ल्स आती हैं, they deliver your packets, है ना, वहां से लेके यहाँ तक देते हैं. सिमिलरली ब्रेन जो है केमिकल सिक्रीट करता है एंड दैट सेंड सिग्नल्स, सिग्नल्स देता है कि अब ये होना चाहिए. जैसे अब फेशियल हेयर्स होने चाहिए, आर्म पिट्स में हेयर होने चाहिए, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, बॉयज के शोल्डर ब्रॉड होने चाहिए, इन फीमेल्स क्या होना चाहिए? पेल्विक एरिया ब्रॉड होना चाहिए. सो ऑल दीज सिग्नल्स आर सेंड बाय आवर ब्रेन थ्रू हार्मोन्स, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश कि शी इज अ गर्ल एंड ही इज अ बॉय. अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि बॉय है या गर्ल्स है, देखो बॉयज के फेस पे हल्के हल्के बाल आने लग पड़े, सो वी कैन से ही इज अ बॉय. यस, वी कैन इजिली से दैट यस ही इज अ बॉय. वॉइस गेट चेंज, किस किस लड़के की आवाज चेंज हो रही है, किस किस बच्चे की, लड़के की आवाज, हैंड रेज करो. हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड एक्सपीरियंस योर वॉइस इज गेटिंग हॉर्स? यस, कौन कौन? ओके, मैनी ऑफ, ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना. अब इसी के साथ एवरीवन, ऑल बॉयज, जितने लड़के हैं, अपना नेक ऐसे ऊपर करके यहाँ पर हाथ रखे. कैन यू सी समथिंग? यहाँ पर कुछ माउंटेन या हिल जैसा ऊपर को निकल के आया है. एक्सपीरियंस, फील दिस थिंग. इट्स नॉट ऑन मी, सॉरी, नॉट इन मी, मेरे में नहीं दिखेगा बिकॉज आई एम ए फीमेल. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स हेयर. इन फीमेल्स, ऑल गर्ल्स, ठीक है, आपका ये ऑलमोस्ट प्लेन है. वी डोंट हैव दैट थिंग हेयर, है अंदर लेकिन इतनी नहीं है. वॉइस में ये ऐसे को निकला होता है हल्का सा. किस किस वॉइस ने एक्सपीरियंस किया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस ये दिस थिंग कि यहाँ पर हल्का सा हड्डी जैसा कुछ बड़ा हुआ है? सो दैट इज योर एडम्स एप्पल, ठीक है. वॉइस में क्या है? एडम्स एप्पल. नेपियर, इट वुड बी बेटर इफ यू फोकस योर कैमरा बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट विजिबल टू मी. नेपियर में कोई स्टूडेंट आगे आके जरा कैमरे का जो है फोकस सही करे बिकॉज यू आर नॉट विजिबल टू मी बेटा, ठीक है. सो नाउ यस,
सो नाउ यू नो दैट ये भी क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज जो चीज खासकर स्पेशली दैट इज विजिबल एंड दैट डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम द फीमेल आर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो दिस इज वोकल कोड। हमारी वोकल कोड क्या होती है? कोड किसको हम कहते हैं? जो भी पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, तार जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कोड। वोकल मीन्स बोलने वाली कोड, जिससे हम बोल रहे हैं। दिस वोकल कोड इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ अस, मेल और फीमेल दोनों में है, बट इन मेल्स इट इज लॉन्गर एंड थिकर। लंबी है, जैसे बांस होता है ना, बांस लंबा है और अंदर से मोटा है। सो उसकी वजह से क्या होगा, जो आवाज है वॉइस की, इट इज डीपर, देयर वॉइस इज डीपर। बट फीमेल की आवाज कैसी होगी? कैसी होती है आवाज? अभी मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे लगता है कोई चीख रहा है। इट इज कॉल्ड हाई पिच। सो बिकॉज इन फीमेल, लिखो इसे, इन फीमेल वोकल कॉर्ड इज शॉर्ट एंड थिन। इन फीमेल्स वोकल, लिखो, इन फीमेल्स वोकल कॉर्ड इज थिन एंड शॉर्ट, छोटी है और पतली है। तो वो छोटी और पतली की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन इज फास्ट, हियर वाइब्रेशन इज फास्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर वॉइस इज हाईली पिच्ड, ठीक है। इसको लिखो, फीमेल वॉइस इज, और you can write down, in female vocal cord is thin and short, arrow करके लिखो like this, write down like this, in females vocal cord कैसी है? थिन, पतली है, प्लस शॉर्ट है, पतली है और छोटी है, ठीक है। इट इज लाइक दिस। बट इन मेल्स, वोकल कॉर्ड कैसी है? इट इज थिक एंड लॉन्गर, थिक प्लस लॉन्गर। सो कैसी है इन बॉयज? इट इज लॉन्ग एंड इट इज थिकर ऑल्सो, मोटी भी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉइस कैसी होगी? डीप, डीप वॉइस। इन फीमेल हाउ इज द वॉइस? इन फीमेल वॉइस इज, इसकी वजह से वॉइस कैसी होगी? हाई पिच्ड। नोट डाउन दिस। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्या होता है कैसे होता है, बिकॉज यू ऑल आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग। किसी के साथ ज्यादा हो रहा है, किसी के साथ कम हो रहा है, बट इट इज हैपनिंग विद एवरीवन फॉर श्योर। अब कोई बोले अभी मेरी आवाज तो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, डजेंट मैटर, बाय द एंड ऑफ 19 years यू विल बी अडल्ट एंड योर वॉइस विल बी लाइक दिस ओनली। चेंज होएगी, वॉइस तक हो जाएगी, मेल वॉइस हो जाएगी एकदम। सो डोंट वरी, दिस इज अ फेज, आएगा और चला जाएगा, बट इट मेक्स यू अ गुड एडल्ट, ठीक है। आई होप इट इज डन। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ठीक है। नाउ इन कमिंग ईयर्स, आई थिंक अभी तो 11-12 साल के हो, इट्स नॉट स्टार्टेड येट। इन कमिंग ईयर्स यू ऑल आर गोइंग टू एक्सपीरियंस पिंपल। किसी किसी के आने लग पड़े, रेज योर हैंड इफ यू ऑल, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। I think many of you. It's okay. First thing, it's a normal thing. पहले अपने दिमाग में सबने बात घुसानी है. It's totally normal that you are experiencing pimples, acne. It's not any issue. By the end of your teenage, it will slow down eventually. ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं होती, because it's not your fault. इसमें किसी भी बच्चे का fault नहीं है कि you are having pimples. Why so? क्यों होता है इसको समझो. Let's understand why acne. Acne क्यों है? What's the reason? Acne होने का reason especially in the face. Face में ज्यादा होता है. I will tell you why. वो भी बताऊंगी. But before that, let's understand how it forms. हमारा जो ह्यूमन है, हमारी जो स्किन है, उसमें पोर्स होते हैं, 6 छोटे छोटे से, कईयों को दिखेंगे, कईयों को नहीं भी दिखेंगे, और उन पोर्स से बाल निकलते हैं, हेयर,
ठीक है, हेयर कम आउट बिकॉज वी आर मैमल्स, हमारी पूरी बॉडी में चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो हेयर ग्रोथ है, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस इज द पोर जहां से बाल ने आना था, बट समहाउ इसमें, इस पोर में, दिस इज द पोर जिसमें हेयर फॉलिकल है, मतलब यहां से बाल ने निकलना था, ठीक है। बट समहाउ एज आई टोल्ड यू वी हैव ऑयल, ठीक है, हमारी बॉडी से ऑयल भी निकलता है। अगर आप एवरीवन यू कैन स्पेशली इन द नोज एरिया, यहाँ पर अगर आप हाथ ऐसे करोगे यू कैन फील इट्स बिट ऑयली, यहाँ करोगे इट्स बिट ऑयली। सो फ्रॉम वेयर दिस ऑयल इज कमिंग, कहाँ से आ रहा है ये? हल्का सा, इट्स नॉट कि आपके जो आपको खाने वाला तेल निकल के आ रहा है, नो इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ज्यादा आ रहा है, जस्ट हल्का सा, थोड़ा शाइनी सी लगेगी आपको अपनी फिंगर, सो यू कैन सी बाय योर सेल्फ ऑल्सो। सो ये जो पोर है, in many cases especially in during adolescent phase it get filled by, इसमें क्या फिल हो जाता है? जो हमारी बॉडी से ऑयल निकल रहा है, ऑयल यहां पर आ जाएगा। अब ऑयल से क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑयल जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ, वाटर जो है, जो यहाँ पर मॉइस्चर था वो इसी में रह गया, कंडीशन कैसी है? ठंडा तो है नहीं, सो प्लस वार्म कंडीशन मिल रही है, ठीक है, वार्म कंडीशन इज ऑल्सो हेयर। So it is basically promoting bacterial growth, promoting bacteria, इसको ऐसे ही बना लो बेटा, so it you can remember it, bacterial growth। अब जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी कहीं भी हमारे उसमें, तो इट विल शो एज सम रिएक्शन, कोई रिएक्शन देगा। अगर हमारे फूड पॉइजनिंग होती है बैक्टीरिया से, क्या होता है? वॉमिट या लूज मोशन लग जाते हैं। So our body tell us na कि there is a problem in our body. Similarly, when oil get trapped here or germs grow here, so our skin tell us that here is a problem. And how we come to know that? We come to know that because of the inflammation. Inflammation मतलब reddish होना या पस भर जाना. So that we come to know that it's a pimple. So this inflammation we can see in the form of pimple. So अब यहाँ पर आपका तो कोई रोल ही नहीं हुआ कि आपने कोई हाथ लगा दिया, गंदे हाथ लगा दिए या कुछ कर लिया। नो, इट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, आपकी बॉडी में बन रहा है। आप अपनी बॉडी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अभी ऑयल मत बना, है ना, पोर्स को मत भर, यू कांट कंट्रोल योर बॉडी इन दैट वे। सो इट इज हैपनिंग, इट विल गो बाय द एंड ऑफ योर टीनेज एज इवेंचुअली। सो दिस इज हाउ एक्ने इज फॉर्म। गॉट इट? क्लियर है एक्ने कैसे आता है? Yes, is it clear? These two things कि कैसे आपकी आवाज मोटी हो रही है, डीप हो रही है, and how these acnes are formed. Clear है सबको? Is it clear? सभी sections है, not from the Pythagoras. It's for everyone. Is it clear? Okay, that's nice. ठीक है? So this is what. अब आते हैं जो हम ऑयल की बात करते हैं. Why pimples are specially here on our face? क्यों हमारे फेस पे ही होते हैं? हमारी बॉडी में बेटा जो ऑयल आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम, राइट डाउन, ऑयल कहां से आ रहा है? सेबेशियस ग्लैंड। अभी ग्लैंड आप ये समझ लो कोई स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, इट्स लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कुछ आगे पहुंचाता रहता है। क्योंकि अभी आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज, जस्ट रिमेंबर इट्स अ ग्लैंड, कोई चीज है जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सेबेशियस मीन्स हो गया ऑयल प्रोड्यूसिंग, तो ये जो प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं सीबम। सीबम मीन्स ऑयल। सो दीज ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड आर मैक्सिमम प्रेजेंट ऑन आवर फेस। सबसे ज्यादा ये हमारी फेस पे ही प्रेजेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो क्योंकि फेस में दे आर मोर इन नंबर, सो दैट्स व्हाई मोर पिंपल्स आर हेयर, नॉट हेयर, नॉट हेयर। इसी वजह से सबसे ज्यादा पिंपल्स फेस पे होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज सेबेशियस ग्लैंड, दोज आर प्रेजेंट मैक्सिमम ऑन आवर फेस। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि अब क्या होता है। ठीक है, ठीक है। So I think we can take some question from this also. ठीक है? Did you get the worksheet? सबको worksheet मिल चुकी है? Okay, you are flagging, waving it. That's nice, huh? I can also do that. ठीक है? So now let's take first question. अब first question में first word is what? ये क्या word बोल दिया? Puberty. What is puberty?
हु कैन टेल मी व्हाट इज प्यूबर्टी? हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हाँ मैम ने भी पढ़ाया ही नहीं, मैम ने एडोलेसेंट बोला, चाइल्डहुड बोला, व्हाट इज प्यूबर्टी? सो लेट्स सी, दिस इज चिल्ड्रन, or we can say childhood phase that I was saying before, या up to 10 years. इसको लिखो, up to 10 years. Now you are moving towards adulthood. ठीक है, you are moving toward adulthood means above 18 years of age. इसी को कहते हैं हम adult, 18 से ऊपर जो होता है उसको हम adult कहते हैं. Now from this, यहां पर 11 years to 19 years जो फेज है इसको हम मोस्टली कहते हैं एडोलेसेंट. दिस इज एडोलेसेंट फेज. देखो इतना लंबा फेज है, बट योर बॉडी मेक्स यू रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. मीन्स हमारी बॉडी आगे जो फ्यूचर के लिए कि हम रिप्रोडक्शन कर सके, हम अपने जैसे और ह्यूमंस को अर्थ पे लेके आ सके, उसके लिए अभी से काम शुरू कर देती है. Let's imagine why we are here on the earth. हम अर्थ पे किस लिए आए हैं? Not about the humans. Any animals you can take, any bird, even microbes also. Let's take a microbe. Microbes कहाँ से आ रहे हैं? They are also coming through reproduction only. ऐसा तो नहीं है आसमान से अपने आप गिर रहे हैं. They are not falling down. ठीक है? So reproduction is what? जैसे आपको Xerox copies मिलती है किसी फाइल की, किसी चैप्टर की. Similarly, भगवान ने, God has given us that power. God has blessed us. It's a blessing, beta. It's not a shame. It's a blessing that if you are reproductively active, it means your body is mature enough. Why? क्योंकि ये आगे चल के in future when you are capable of raising a baby, it's a blessing. ठीक है? Take it as positive. As I told you, you are becoming a good citizen, you are becoming a good adult. To become a good adult, always think upon this in positive way. It's not anything that is, you should ashamed of. ठीक है? अब सुनो ध्यान से. 11 to especially till 14 years of age. In this period, male and female both get reproductively mature. Reproductively mature means they can in future, ठीक है, when they are capable of, can raise a baby. ठीक है? क्या कर सकते हैं? एक बच्चा जो है उसको पाल सकते हैं, उसको अर्थ पे लेके आ सकते हैं. एंड इट्स अ ब्लेसिंग. जस्ट थिंक आप सारी जो क्लास में भी बच्चे बैठे हो, क्या आप सोच सकते हो कि आप लास्ट जनरेशन हो? डू यू इमेजिन यू आर द लास्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ? कैसा होगा? लेट्स इमेजिन कि अगर आप लास्ट जनरेशन हो, उसके बाद कोई बच्चा ही ना हो, क्या होगा? कैसी लाइफ होगी? जस्ट इमेजिन दैट ओनली एडल्ट्स विल बी देयर. जब आप बड़े होंगे सिर्फ आपको एडल्ट्स दिखेंगे, नो किड. इट विल बी वेरी बोरिंग. एंड विद दिस ऑल्सो इट इज वेरी ड्रेडली ऑल्सो. क्यों ड्रेडली? क्यों है? डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसके बाद इसका मतलब ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशीज है अर्थ से खत्म हो जाएगी, लाइक डायनासोर. एंड वी डोंट वांट दैट. क्या आप चाहते हो ऐसा हो? डू यू वांट दैट? यस? नहीं, है ना? नहीं चाहते कि ह्यूमन स्पीशीज अर्थ से गायब हो. एंड फॉर दैट आवर बॉडी, ह्यूमन की बॉडी विद द ग्रेस ऑफ गॉड इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ एट दिस टाइम 11 से 14 इयर्स के बीच में. सो वी आर गेटिंग रिप्रोडक्टिवली मैच्योर. एंड दिस फेज अंडर एडोलेसेंट, ये जो इतना सा फेज है, इट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. इट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. इसको प्यूबर्टी कहते हैं. प्यूबर्टी इज अ फेज अंडर एडोलेसेंट. एडोलेसेंट के भी अंदर एक फेज है छोटा सा, ठीक है, जिसमें ये चीजें होती है. गॉट इट? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्यूबर्टी इज द स्टेज इन विच बॉडी ऑफ एन एडोलेसेंट अंडरगोस एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस टू डेवलप इनटू. यस,
रामानुजन से आ जाओ, मिडल रो, आई थिंक थर्ड बेंच बॉय हु इज स्टैंडिंग, आ जाओ। आई थिंक थर्ड बेंच है, फोर्थ बेंच है, आ जाओ आ जाओ, स्टैंडिंग तो आप ही हो, खड़े आप ही हो, आ जाओ। यस स्पीकर बेटा, your voice is not coming if you're saying something. Are you saying some? अच्छा, do one thing. If you're not audible because it's MCQ question, don't worry. अपनी सीट की तरफ जाओ. For the first option, show me 1 finger, 2 finger, 3 finger, 4 finger. So you're saying 2. That's nice. An adult capable of reproduction. So that's nice. Everyone mark the question का answer है D. Coming to the second question, from a biological perspective, the main purpose of puberty is to थेल से आ जाओ, गर्ल, यस गर्ल, कॉर्नर रो, थर्ड बेंच गर्ल, यस आ जाओ बेटा, थेल्स। यस बेटा, Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून बेटा। Then the answer of second is C, achieve reproductive maturity. That's nice. Yes. So achieve reproductive maturity. That's nice. Coming to the third question. Why does puberty occur at specific age rather than childhood? तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ बात की है. So who is going to tell me the answer? Pythagoras से first bench boy middle row. आ जाओ. Yes. What's the answer बेटा? Did you say something? First bench? अच्छा, आपकी आवाज नहीं. Show me the finger. Show me the finger for the answer. Okay, D. Okay, got it. Yes, it's D. All of the above, क्योंकि brain matures to regulate hormones effectively. As I told you, at childhood, most of the energy is consumed in growth of body. C. Puberty and maturation of sex organs requires energy. ठीक है? So that's why all of the above options are correct. Coming to the fourth question. Let's come to the fourth question. Why are secondary sexual characteristics are important? Why these are important? Yes, Leibniz से last bench girl corner row. आ जाओ. Ma'am, B option. Yes, B option. They help distinguish males and females. So like now you can see boys are having facial hairs. अब इसमें एक क्वेश्चन मैं एक चीज बताना चाहूंगी. I want to tell you one thing here. Okay, पहले आंसर नोट कर लेते हैं, then I'll tell you. ठीक है? So answer is B. We say males are having facial hair. Do you think female doesn't have? कौन कौन कहता है फीमेल्स के फेस पे जरा भी बाल नहीं होते? रेज योर हैंड. आई वांट टू सी. Boys, only boys are agreeing. Okay, boys are more confident that girls doesn't have facial hairs. Okay, girls, Pythagoras, I can see. Okay, let me correct you. In females also we have facial hairs, but we don't have thick hair. We don't have black hairs as males have. तो हम जो humans होते हैं या कोई भी mammals आ गया, पढ़ोगे mammals क्या होते हैं? We have full fledged, our body is fully covered with hairs. हमारी बॉडी पूरी हेयर से कवर होती है, चाहे वो थोड़े से हो, पतले से हो. सो वी हैव फेशियल हेयर्स. नाउ अब आप बोलोगे फिर बॉयज और हम में क्या फर्क है? बॉयज और हम में वी हैव अ डिफरेंस. लाइक इफ ए बॉय, ठीक है, तो उसके पूरे उसमें डार्क कलर के आपको बेटा थिक मोटे और काले बाल नजर आएंगे. बट इन फीमेल्स हमारे बाल नहीं दिखते बिकॉज दीज आर वेरी थिन एज कंपेयर टू मेल्स. एंड वाई सो? इसका रीजन है बिकॉज वी हैव एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन थिक, इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ, इसको लिख लो, ग्रोथ ऑफ थिक एंड डार्क ब्लैक हेयर.
ठीक है, दैट्स वाई वी डोंट हैव दैट बल्की हेयर, ठीक है, इस वजह से नहीं होता। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द वॉइस ऑफ बॉयज यूजुअली बिकम्स डीपर बिकॉज, नेपियर से, यस, नेपियर से आ जाओ गर्ल सेकंड बेंच, ऐसे वाली, हाँ हाँ, यस यू आर राइट, कम जल्दी आओ, जल्दी कम फास्ट। यस, व्हाट्स द आंसर बेटा? यस बेटा, But because longer and thicker. yes, because their vocal cord becomes longer and thicker. That's nice, sit down. So that's correct. Coming to the sixth question, which statement best explains the role of sex hormones in body hair growth? So I think we हमने अभी कुछ कुछ ये क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। सो ये सिक्स का कौन बताएगा आंसर? ओके, कौन सा सेक्शन अभी रह गया है? पास्कल से, पास्कल, एनीवन फ्रॉम द पास्कल हु वांट्स टू कम? मिडल रो, लास्ट बेंच, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट बेंच बॉय जो हेड डाउन कर रहा है, पहले हैंड रेस किया था, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम फास्ट, जस्ट नीड टू गिव आंसर बेटा। यस, आंसर के लिए तो फटाफट आना चाहिए, है ना, गलती होगा उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। यस, A option. they are saying it's A. So which statement best explain the role of sex hormones in body hair growth? अब इसका सुनो, सब सुनो आंसर। They stimulate existing hair follicles to produce thicker hair. हेयर फॉलिकल्स, बाल जो हमारी बॉडी में बने वो पहले से फॉलिकल्स, पोर्स बने हुए हैं, लेकिन जब आपकी एज आती है एडोलेसेंट तो आर्म पिट पे हेयर तब आने लगते हैं बिकॉज हार्मोन स्टिमुलेट देम। सो आंसर ऑफ दिस इज सी। Coming to the seventh question, females may have fine hair on face but not a beard because, अभी देखो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, so let's see who can answer. Newton से I can see one hand, middle row, but I'm not able to see the student because of camera focus. Yes. Baby. Yes, so estrogen suppresses thick hair growth on face. That's nice. Coming to the eighth question. During a puberty, sebaceous gland produce excess sebum due to, क्यों ज्यादा sebum मतलब ऑयल निकलता है, किस लिए? Yes, who can tell me the answer of this? Someone from the Richardson? Yes, आ जाओ बॉय, सेकंड लास्ट बेंच, आ जाओ आ जाओ। मैम आइज, मैम की आइज बहुत तेज है, जल्दी से देखती है, कोई बच्चा हैंड तो रेस करे। हाँ, आ जाओ आ जाओ, सेकंड बेंच कॉर्नर बॉय, आ जाओ फटाफट आओ, जल्दी जल्दी। Why there is a pushing and pulling? Come, वो अपने आप आएगा, he is brave enough. Yes. Yes. हाँ, I think Richardson mic is not working. Do one thing बेटा, थोड़ा पीछे जाके show me the in fingers like 1 2 3 4 which option is correct? Yes, turn back. You are saying first option, A option. Okay, you are saying that during puberty increase in body temperature, हमारा body temperature increase हो जाता है, कुछ और हमारा ब्रेन बनाने लगता है, our brain does something. Yes, थेल से, न्यूटन से, पाइथागोरस से, आई थिंक मैनी, इवन रामानुजन। नाउ आई कैन से रिचर्डसन। रिचर्डसन को ही आंसर देना, बताओ। यस, साइन ऑफ विक्ट्री। यस, इट्स राइट। सो यस, आंसर इज हार्मोनल स्टिमुलेशन, क्योंकि हमारा ब्रेन कहाँ केमिकल्स यानी हार्मोन्स बनाने लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। Coming to the ninth, why is acne more common on the face during puberty? मैंने इसका रीजन बताया था, कौन है इसके पीछे, who is doing this? रामानुजन से बॉय, चलो बेटा आप आ जाओ। यस, voice not coming. I think again you have to use your fingers to tell me the answer. Oh yes, it's B. Yes, absolutely right. These areas have more sebaceous gland. That's nice, wonderful.
Coming to the 10th question, the main reason acne appears during puberty is because of, again it's linked with this question, previous question से link है. Show me the, जिसको आंसर आता है, show me the finger. Show me the finger, let me see. That's nice, हाँ, सभी ने जो victory का sign बना लिया. That's nice, that's nice. So its answer is again increased activity of oil glands near hair follicles. That's nice. So it's like we are playing a game, क्योंकि आप सभी को आता ही है ना? Coming to 11th, which statement correctly explains acne formation and puberty? Acne formation and puberty. So okay, you are already starting giving me answer in the form of finger. So let me see which section. Richardson, you're correct. Thales correct. Pythagoras correct. Pascal correct. Napier, what's your answer? Yes, correct. Newton. Victory sign नहीं है आपकी बार. No victory sign. Thales right. Leibniz right. Ramanujan correct. Newton देखो रिवाइज करके कुछ आंसर आता है. Yes, now it's correct. So answer is it's D. B and C both are correct. Shivam, block pores of hair follicles and trap bacteria. Block pores provide warm, oily environment where bacteria grow rapidly. ठीक है? Coming to 12th, which change best explains the sudden increase in height during adolescent? Okay, everyone. Okay, not everyone. Like, चलो फिर से section wise करते हैं. Ramanujan is right. Richardson में नहीं. This is not correct. Even Pythagoras first is not correct. Pascal not correct. Napier no. Newton no. Leibniz no. Thales correct. Thales रामानुजन का एकदम सही है. सेकेंड, रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स एट बोन ग्रोथ प्लेट, क्योंकि बोन ग्रो होगी तभी तो आपकी हाइट बढ़ेगी, मसल बढ़ेगी, स्नेल बन जाओगे. स्नेल बनना है, हाँ, बोन्स बनेगी, फ्रेमवर्क बनेगा, तभी तो आप खड़े हो पाओगे. हाउ कैन यू स्टैंड देन? सो आंसर इज 12th का बी. Coming to 13, why do muscles become stronger during adolescence? क्यों muscles, boys especially start doing this, है ना? muscles बन रही है हमारी, क्यों बन रही है? Okay, Newton is correct. Leibniz is correct. Pythagoras correct. Pascal correct. Richardson correct. Ramanujan नहीं. Thales correct. Napier correct. अब की बार victory sign था रामानुजन. So answer is increase in muscle cell size due to sex hormones. ठीक है? So 13 का है आंसर, it's B. अब आ जाते हैं assertion reason. Assertion reason के लिए पहले रूल सुनो कैसे करना है. It's like a game. If you find statement is correct, show me the thumbs up. If you find statement is false, show me the thumbs down. I think you understand that. हमने पहले भी खेला होगा ना ये गेम. चलो, let's do it. So 14th question ka assertion and reason. So assertion is saying broadening of shoulders is a secondary sexual character in boys. Newton correct. Pascal correct. Pythagoras correct. Thales correct. Napier correct. Ramanujan correct. Richardson correct. Options तो है ही नहीं. What you are showing me options नहीं अभी बताने. सिर्फ correct and false. ठीक है? That you have to tell me. ठीक है कि assertion is right or wrong. ठीक है? In this way. Yes. So now Thales is also right. So it's true. Boys के shoulder broad होते हैं. Boys देखो ऐसे चलने पड़ेंगे. कुछ तो boys ऐसे कि हमारे shoulder broad हो गए, है ना? So that's why, because their shoulders are actually getting broad. ठीक है? Like in females, pelvic area broad होता है, so that in future we can bring child to the earth. ठीक है? Reason, boys experience increased muscle growth during adolescent. I can see सबने पहले ही, especially Newton, Leibniz, Ramanujan पहले ही true करके बैठे हैं. Yes, it's true. Coming to 15, assertion and reason. Secondary sexual characters help distinguish boys from girls physically during adolescence. Yes, that's also correct. That's nice. I like the answer round, this, especially this answer round. Question round, sorry. Reason, secondary sexual characters are present in children from birth.
Yes, no, yes, no, yes, no, मैं नहीं बताऊंगी. I am not going. Ramanujan is right, Thales is right, Newton right, Leibniz right, Napier right, Pascal right, Pythagoras right, Richardson, Thales, everyone is right. Why someone is showing me this? बहुत सारे दोनों बच्चे दोनों हाथ से करने लग पड़े आंसर. हाँ. So yes, it's false. This statement is false. Coming to the assertion reason 16th. Short and thin vocal cords produce high-pitched sound. Is it true? Basically, it's talking about female, and it is true. Yes, it's true. Coming to the reason, thick and long vocal cords vibrate more slowly than thin and short vocal cords. तो ये मैंने बताया था आपको. That's true. Wrong नहीं है. Long or thick vibration is less. Thin and short vibration is more. So it's true. Now table पे आते हैं. ठीक है. If you think it's with the boys, अगर ये boys के साथ ही होता है, show me one finger. If it's happens with the girls, show me two finger. अगर ये दोनों के साथ होता है तो दोनों fingers. ठीक है. Boys one, girls two, with both. सॉरी, बोथ में तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना. गर्ल्स के लिए दो कर, थर्ड 3 फिंगर्स. ठीक है. देन गो विद द 3 फिंगर्स. अच्छा, पहले मुझे बोलने तो दो. पाइथागोरस एंड न्यूटन, लेट मी स्पीक. ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, बोथ, दोनों में होते हैं ना, गर्ल्स एंड बॉयज में दोनों में है. सो वी कैन से दैट बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, है ना. मगर बेटा अगर लेट मी से फेशियल हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, मगर दिखते किसमें है, हम उस वे में लेते हैं. इट्स ओनली इन द बॉयज. ठीक है, जो दिखते हैं. मेंसुरेशन, गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स. नेक्स्ट इज हेयर इन आर्मपिट्स, हेयर इन आर्मपिट्स, yes, both. Development of breasts, girls or boys, girls. Pimples, pimples, दोनों में, both. That's nice. Now question पे आते हैं. Explain why acne appears in the face of adolescent. तो इसको हम आंसर लेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 था, इसका आंसर लिखो वहां से. क्वेश्चन इसके आगे लिख दो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट स्टेटमेंट. जो बी और सी है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लिखो इसका. ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए जो है, इसका जो आंसर है द स्टेटमेंट, जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 की बी एंड सी है. सो दैट्स द आंसर. ठीक है. कमिंग टू द बी पार्ट, द वॉइस ऑफ मेल गेट्स डीपन. सो इसका आंसर है आपका बी का, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जो बी ऑप्शन है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इसी का. pelvic area in girls broadens than boys. Why it is broaden than boys? What's the reason? As I told you, in future what we have to do, we have to bring baby in the world, है ना. हमने बच्चा लेके आना है. So that's why in देखो boys का क्या बढ़ता है, this area broaden होता है. girls का this area get broaden. ठीक है. So आंसर लिखो, write down the answer of C part. ठीक है. Females hormones causing broadening of pelvic bones to prepare body for childbirth in future. So our body basically thinks for future. ठीक है, इस वजह से होता है. That's the reason. Got it? अब बेटा ये जो next 20 और 21st क्वेश्चन है, because we didn't discuss about this कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. mensuration we didn't discuss. So we will take these two question and concept of mensuration in the next class. ठीक है. I hope आज का जितना था आपको समझ आ गया. Did you get it? Yes? Did you get it? Show me. I want to see that. Did you get it? That's really nice. That's it. Clap for yourself because you are smart enough. Huh? That's nice.
चलो, with this we are ending this class. Bye everyone. Bye. Bye बेटा.